अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम 9th का केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 है, उसका टॉपिक पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ वाटर। नाउ द डिसोसिएशन वाटर means the water is split into their ions, and the dissociation of water is also called the ionization of water, means water ionize into their ions. Now in the dissociation of water, the equilibrium constant Kc for the self ionization of water called the ionization constant Kc or the dissociation constant of water Kc मीन्स आपको Kc का पता चल गया ना बेटा, किसे कहा जाता है। मीन्स द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज डिनोटेड बाय Kc. Now here this equation it shows that the equilibrium constant is denoted by these both arrows. These arrows are the first upper arrow is called the forward reaction, show the forward reaction, and the lower arrow is shows the reversible reaction. Now here water is dissociate into hydrogen and hydroxyl. But in the equilibrium we use the formula equilibrium constant Kc, and the Kc is equal to the concentration of hydrogen, concentration of hydroxyl, and the concentration of water. Now at the 25 degrees centigrade or degrees Celsius temperature, it is the constant temperature for the dissociation of water. Now this bracket is known as the square brackets, and we know that in this formula the concentration. Now here the base dissociation constant is shown by Kb, B for base, and acid dissociation constant is equal Ka, A for acid. Similarly, the constant ion product equal to the Kw, W for water, and the general formula is Kc is equal products concentration of product or products and the concentration of reactant, and product always made by the Kf means constant for forward reaction, and Kr means the constant for reverse reaction. Now here Kc means the water or is called the Kw means dissociation of water, means the concentration of hydrogen and the concentration of hydroxyl. Now both having the amphotic property means the dual property. Dual property means the water having the property of an acid as well as base, and an acid means the hydrogen H is denoted the acid, hydroxyl OH denoted the base, and the constant for water is made by Ka into Kb means constant for acid and into the constant for base. Now students, you want to remember it and this formula, then we study again for the equilibrium of the other substances, equilibrium of acid as well as the equilibrium of bases. बेटा आपको समझ आ गया होगा, इसमें हमने एसिड की और बेस की इन प्रॉपर्टीज़ को बताया। थोड़ा आपको उर्दू में बताना ज़रूरी है ताकि आप बात को समझ पाएँ, क्योंकि हमारे पास के कांस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है, ए एसिड का है, बी बेस का है, डब्ल्यू वाटर का है और एफ फॉरवर्ड का है, इसी तरीके से आर रिवर्स का है। और वाटर क्योंकि हमारे पास दो किस्म के आयन रखता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन है, तो उन दोनों को हम यूज़ करेंगे। आप इसका जनरल फार्मूला याद रखेंगे जिसमें प्रोडक्ट ऊपर दिखा रखी हैं और जो रिएक्टेंट है उसका नीचे दिखा रखा है। तो जब भी कोई फार्मूला होगा आप उसमें प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे। अब ये हमने मेजर फार्मूला आपको मेन फार्मूला क्यों बता दिया है, क्योंकि इसमें आप अगर एसिड होगा जैसे HNO3 है तो उसमें भी आप देखेंगे जब रिएक्शन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर
नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, तो क्या है इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया में NH3 जो है कब बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है। तो हमें जहाँ रिएक्टेंट लिखा है वहाँ रिएक्टेंट लिखना है, जहाँ प्रोडक्ट लिखा है वहाँ प्रोडक्ट लिखना है। अब आप ये याद करेंगे, याद करके मुझे ऐसा ही इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे अपनी वर्डिंग में, इसकी डेफिनेशन वगैरह, और लिख के मुझे अलहदा से अपने अपने कॉन्टैक्ट पर मुझे सेंड करेंगे। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। मेरी नई आने वाली जो भी वीडियो होगी वो आपके पास उसी टाइम पहुंच जाएगी, और उससे देख के आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्वारंटाइन पीरियड में ये आपके लिए बहुत बेस्ट है एक, और ये आप तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, किसी भी सिटी के हों, किसी भी स्कूल के हों, आप ये उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सदका जारिया है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि बच्चे कम से कम घर बैठे स्टडी करें, पढ़ें, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो, और अल्लाह ताला ये सवाब है। और आपको भी इसके इसी हिसाब से अल्लाह ताला आपको नंबर भी अच्छे देगा। और कमेंट्स लोग जो है उल्टे सीधे भी करेंगे, अच्छे भी करेंगे, उस पर आप डिसहार्ट ना हों, क्योंकि कहीं भी अच्छाई हो तो बेटा वहाँ पर बुराई भी ज़रूर होती है, उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। नाउ गॉड ब्लेस यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।